Okay, now next, conversion of an improper fraction to mixed fraction. Conversion of an improper fraction to mixed fraction, इसको convert हम कैसे करते हैं? It's a improper fraction कैसे है? Because numerator is greater than denominator. Numerator is greater than denominator. It means it is an improper fraction. Now you have to convert 5/3 into mixed fraction. 5/3 को मैं mixed fraction में convert करना है. It means whole number and a proper fraction. Mixed fraction कैसे convert होता है? जिसमें होता है whole number and a proper fraction. Now we'll divide 5 with the 3. 5 is the dividend, 3 is the divisor, 3 ones are 3. When we subtract 3 from the 5, we got the 2. How can we convert 5/3 into mixed fractions? We have to write it as 5/3 is equals to 1 by 2/3. 1 by 2/3. Now convert 5/3 into mixed fraction. It means you have to divide the fraction. You have to divide the fraction. Then write it down as a mixed fraction. 1 is a whole number and 2/3 is a proper fraction. Why? Because the numerator is smaller than the denominator. Now conversion of mixed fractions into improper fraction. Here we have studied conversion of an improper fraction into mixed fraction. Now conversion of mixed fractions into improper fraction. We already have a mixed fraction. Convert 3/5 into an improper fraction. Improper fraction means where numerator must be greater than the denominator. Numerator कैसा होना चाहिए? Denominator से ज़्यादा greater होना चाहिए. Now we have 3/5. किस तरह से हम इसको solve करते हैं? We have to solve like 5 multiplied by 1. When we multiply 5 with the 1, then the product will be added with the 3. हम 5 multiplied by 1 को हमने multiply किया, इसके product को हम 3 से add करेंगे. किस तरह से लिखते हैं इसको? 5 multiplied by 1, 5 multiplied by 1. प्रोडक्ट इसका जो भी आएगा, द प्रोडक्ट वी गेट वी हैव टू ऐड विद द 3. हम 3 से इसको एडिशन करेंगे. सो वी राइट इट एज 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3. 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम. अगर इस फ्रैक्शन में 5 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा? 5. सो हमने कैसे लिखा इसको? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3. 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 अपॉन 5. 5 multiplied by 1, 5 ones are 5 plus 3, 5 ones are 5 plus 3 upon 5. We got 5 plus 3, 8 upon 5. We got 8 upon 5. When we convert mixed fraction into improper fraction, when we convert 3/5 into an improper fraction, we got the answer 8 upon 5. कैसे improper fraction हुआ? Why? Because 8 is greater than 5. Numerator is greater than denominator. ओके ना. एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, हमने एडिशन बहुत सारे नंबर्स का किया हुआ है, होल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, सिंगल डिजिट नंबर, डबल डिजिट नंबर. बट नाउ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस इन एडिशन. एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस एंड एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस एंड एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. हाउ टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस. नाउ लाइक फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी हमें पता है. हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक? जब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है. नाउ वी हैव 3 फ्रैक्शंस, 3/7, 2/7 एंड 1/7. सबका डिनोमिनेटर सेम है, 7, 7 एंड 7. इट मीन्स दिस इज लाइक फ्रैक्शन. हाउ टू ऐड द लाइक फ्रैक्शन? 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7. नाउ यूज द डिनोमिनेटर सेम. हमने 7 को 7 ही रखा. एंड ऐड ऑल द न्यूमरेटर्स. हम जितने भी न्यूमरेटर्स है सबको ऐड कर देंगे. Do not write 7 3 times, write 7 only single time and add all the numerators. We add all the numerators. 3 plus 2 plus 1. We have a numerator 3, we have a numerator 2 and we have a numerator 1. So we add all 3 numerators, which is 3 plus 2 plus 1 upon 7. When we add this number, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6. So we got the answer 6 upon 7. When we add 3 upon 7 plus 2 upon 7 and 1 upon 7, we get 6 upon 7. नाउ एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि फ्रैक्शन कैसा है अनलाइक? उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है. सो वी हैव 2 फ्रैक्शंस हियर व्हिच इज 2/3 एंड 1/5. इट मींस दिस इज अनलाइक फ्रैक्शन. क्यों अनलाइक फ्रैक्शन हुआ ये? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स वैल्यू डिफरेंट है. यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शंस. हमें सबसे पहले से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शन में. उसके लिए हम क्या करेंगे? 3 और 5 के मल्टीपल आप देखेंगे, 3 और 5 के टेबल आप देखेंगे.
तो इन दोनों की टेबल में जो नंबर कॉमन आता है वो ही इसका क्या होगा, एलसीएम। इन दोनों की टेबल में जो भी नंबर कॉमन आएगा वो होगा एलसीएम। 3 की टेबल में 15 आता है, 5 की टेबल में भी 15 आता है, तो इनका एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल्स टू 15। नाउ हमें डिनोमिनेटर में 15 चाहिए, हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3 एंड 1/5, हमें डिनोमिनेटर में क्या कन्वर्ट करना है, दोनों में 15 एंड 15। क्यों? क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है इसे। हम ऐड 2/3 एंड 1/5 में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 15 कैसे आएगा, 2/3 में डिनोमिनेटर कैसे 15 आएगा, जब हम इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस 3 विद द 5। नाउ अब हमने क्या किया, इस 5 को दोनों से, न्यूमरेटर से एज वेल एज विद द डिनोमिनेटर, हमने 5 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर। जब हमने एलसीएम लिया 3 और 5 का तो वो आया 15। 15 क्यों आया, क्योंकि दोनों की टेबल में कॉमन नंबर है 15 मल्टीपल है। नाउ 2/3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने न्यूमरेटर में भी 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, और डिनोमिनेटर में हमने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 15 चाहिए। तो 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम, इसलिए हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 15। सिमिलरली 5 की टेबल में हमें 15 चाहिए विच इज 3 टाइम, इसलिए हमने 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई किया, 3 को हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया एंड 3 को हमने डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया। Now 1 multiplied by 3 is equals to 3 and 5 multiplied by 3 is equals to 5. Now these are like fractions, अब एक like fraction convert हो गए हैं, क्यों? क्योंकि इनके denominators कैसे हैं, सेम है, 10/15 and 3/15 denominators are same, it means these are like fraction। और जब like fraction में convert हो गया तो addition का process क्या होता है, similarly this। Now we have to add now 2/3 plus 1/5। हमने 2/3 का फ्रैक्शन क्या निकाला, 2/3 10/15 and 1/5 3/15। So 10/15 plus 3/15। डिनोमिनेटर सेम है, आप न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 10 plus 3/15 you have to write 15 single time only। 10 plus 3/15 is equals to 13/15। You got the answer। When we add 2/3 and 1/5 we got the answer 13/15। Now addition, we have studied addition of like fraction and addition of unlike fraction। Now the third one is addition of mixed fraction। We all know mixed fraction क्या होते हैं, हमने अभी just पढ़ा है। Mixed fraction होता है like we also have a whole number and a proper fraction। Now we have to add 3 2/3 plus 1/4। First we have to convert this mixed fraction into improper fraction। हमने conversion अभी सीखा है कि conversion कैसे करते हैं इसका। We have to multiply this and the product will be added with the numerator। We have to multiply 3 with the denominator and the product will be added with the numerator। हम product को किससे add कर देंगे, numerator से। So we multiply 3 with the 3 multiply by 3 plus 2/3, keep the denominator same, 3 multiply by 3 plus 2/3, we got 3 3s are 9, 9 plus 2/3, 9 plus 2 is equals to 11/3। So we convert it into improper fraction, so we got 11/3। Now again 1/4, again this how to convert, multiply 1 with the denominator and the product will be added with the numerator। Now 1 multiply by 4 plus 1, 1 multiply by 4 plus 1/4, 1 into 4, 4 plus 1/4, when we add 4 with the 1 we got the answer 5/4। So when we convert 1/4 mixed fraction into improper fraction we got the answer 5/4। Now 11/3 and 5/4, we got the fraction 11/3 and 5/4, again you have to convert, we have unlike fraction, why? Because the denominators are different, so we convert it similarly like this, we convert this unlike fractions into like fraction। हम इसको सबसे पहले like fraction में convert करेंगे, like fraction में convert करने के लिए हम इसका LCM लेंगे, LCM means 3 और 4 दोनों की मल्टीपल्स आप देखें, दोनों की टेबल आप बोलेंगे, दोनों के मल्टीपल्स देखेंगे तो कौन सा नंबर कॉमन है। 3 की टेबल में 4 times 12 आता है, 4 की टेबल में 3 times 12 आता है, इट मीन्स 12 इज द कॉमन मल्टीपल, 12 इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4। सो नाउ अब हमें क्या करना होगा, अगेन अब हमें डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में 12। हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है, फर्स्ट इज 11/3 एंड सेकंड इज 5/4। वी हैव 2 फ्रैक्शंस, फर्स्ट इज 11/3 एंड सेकंड इज 5/4। नाउ डिनोमिनेटर में हमें 12 चाहिए, तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 12 वैल्यू आ जाए।
वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विद द 4. जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी 12. एंड सिमिलरली यही 4 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली यही 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई हुआ. So when we multiply 11 with the 4 we got 44 and 3 multiplied by 4 we got 12. First fraction is 44 upon 12. Second is 5 upon 4. Now 4 हमें डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू चाहिए विच इज 12. डिनोमिनेटर में हमें 12 चाहिए. इट मीन्स हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 3 को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. 5 multiplied by 3 upon 4 multiplied by 3 we got 15 upon 12. Now we have like fractions. कैसे like fractions हुए, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन और हमारे सेकेंड फ्रैक्शन दोनों के न्यूमरेटर सेम है. दोनों के न्यूमरेटर क्या है, सेम है. Now we have to add both the fractions. Now when we add both the fractions, which is 44 upon 12 plus 15 upon 12. Now add the numerators. 44 plus 15 we got 59 upon 12. We got 59 upon 12. Now you have to change it into mixed fraction. हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय डिवाइडिंग. हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय डिवाइडिंग. 59 डिवाइडेड बाय 12, 12 4s are 48. When we subtract 48 from 59 we got 11. So we write it as 59 upon 12 is equals to 411 by 12 as our answer. Now remember one thing, we can change the sequence in addition. हम addition में sequence change कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर आपके पास एडिशन है 3/7, 2/7 एंड 1/7, तो आप इसको सीक्वेंस इसका चेंज कर सकते हैं. यू कैन राइट 1/7 बिफोर, 2/7 एट द लास्ट. बट इन सब्ट्रैक्शन यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस. सब्ट्रैक्शन में आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते. अगर आपको किसी फ्रैक्शन को 0 से ऐड करना है तो आंसर विल बी द नंबर और आंसर विल बी द फ्रैक्शन इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन 4/5 प्लस 0 से हम फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा 4/5. हमारा आंसर क्या होगा, द फ्रैक्शन इटसेल्फ. व्हेन वी ऐड अ फ्रैक्शन विद द 0 और व्हेन वी ऐड 0 विद द फ्रैक्शन वी गॉट द आंसर एज अ फ्रैक्शन इटसेल्फ. नाउ नेक्स्ट विद द सब्ट्रैक्शन. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. वी हैव स्टडीड एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ मिक्स्ड fraction. Now subtraction of like fraction, we have to subtract 5/8 from 7/8. 5/8 from 7/8, we keep the bigger value at the first place. 7/8 minus 5/8. 7/8 minus 5/8. We know how do we add the addition in like fraction. हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर सेम रखा था और जो न्यूमरेटर से उनको क्या किया था, ऐड कर दिया था. नाउ डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. We write 8 सिंगल टाइम. 7 minus 2 is equals to 2/8. 2/8 को हम रिड्यूस्ड फॉर्म, सबसे लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं. कैसे लेके जाते हैं लोएस्ट फॉर्म में, उसको कट करते हैं. कट किससे करेंगे, इसको 2 की टेबल स्मॉलेस्ट नंबर से कट करेंगे. 2 से हमने कट किया तो 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8. So your answer is 1/4. When we subtract 5/8 from 7/8 we got the answer 1/4. Now in subtraction you cannot change the sequence of subtraction में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. आप ऐसे नहीं कर सकते कि 5/8 minus 7/8. No, your answer will be wrong. कैसा होगा subtraction, 7/8 minus 5/8. Now subtraction of unlike fraction, similarly with the addition, जैसे हमने addition में किया था. Now we have to subtract 3/5 from 2/3. हमें क्या करना है, 3/5 को माइनस करना है from 2/3, जो बड़ा फ्रैक्शन है which is 2/3. सबसे पहले तो जैसे हमने एडिशन में किया था, हमें इसे अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. अनलाइक फ्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शंस. 5 और 3 के मल्टीपल्स आप बोलिए कौन सा नंबर कॉमन आता है. अगेन 15 नंबर कॉमन होता है. तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज 15. 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम. उस 3 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. 3/5 is equals to 3 multiplied by 3 upon 5 multiplied by 3. ये कौन सा 3 है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, डिनोमिनेटर में 15 चाहिए था. हमें डिनोमिनेटर में 15 चाहिए था. That's why we multiply 5 with the 3 and 3 with the 3. So when we multiply 3 multiplied by 3 and 5 multiplied by 3, we got 9/15. Similarly हमें 2/3 के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 15 चाहिए. 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 15 comes in 5 table 5 टाइम. In 3's table 5 times. So we multiply 3 with the 5. हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इसी 5 को हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया. So 2 multiplied by 5 upon 3 multiplied by 5, we got 10/15. So LCM of 5 and 3 is 15. हमने LCM को कन्वर्ट किया. हमने डिनोमिनेटर में दोनों प्लेस पे क्या करा, 15 किया. डेट्स वाई हमने मल्टीप्लिकेशन किया.
नाउ वी गॉट लाइक फ्रैक्शन. कैसे हुए लाइक फ्रैक्शन? बिकॉज इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करना कि 3/5 माइनस 2/3 कर दें. नो, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 2/3. इसलिए 2/3 कहाँ जाएगा? फर्स्ट प्लेस पे. 2/3 माइनस 3/5. 2/3 का हमारा फ्रैक्शन क्या आया था? विच इज 10/15. 10/15 माइनस 3/5. 3/5 का फ्रैक्शन हमारा था 9/15. सो 10/15 माइनस 9/15. सिमिलरली आपकी लाइक इक्वेशन जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, वही इक्वेशन बनी है. So we keep the denominator same 15 and subtract the numerators, which is 10 minus 9. We got the answer 1/15. Subtraction of like fraction, subtraction of unlike fraction, or subtraction of mixed fraction. Now we have a question: subtract 1 3/4 from 3 1/7. अगेन सीक्वेंस चेंज नहीं करना होता. फ्रॉम के बाद जो डिजिट होती है, बिगर डिजिट होती है, उसको पहले लिखा जाता है. सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई 1 विद द डिनोमिनेटर एंड द प्रोडक्ट विल बी एडेड विद द न्यूमरेटर. इन दोनों का प्रोडक्ट न्यूमरेटर से ऐड हो जाता है. कैसे लिखेंगे इसको? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3/4. 1 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गॉट 4 प्लस 3/4. 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/4. अगेन 3 1/7. अगेंस्ट 3 7 को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर एंड द रिजल्टेंट और प्रोडक्ट विल बी एडेड विद द न्यूमरेटर. इन दोनों का 7 और 3 का जो भी प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने पे, जो भी आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर से या 1 से ऐड करेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1/7. 7 3 आर 21 प्लस 1/7. 21 प्लस 1 वी गॉट 22/7. नाउ वी हैव टू फ्रैक्शंस. First one is 7/4 and 22nd one is 22/7. This is unlike fraction. Why? Because the denominators are different of both the fractions. सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? like fraction में. We have to convert this unlike fraction into like fraction. उसके लिए हम LCM लेंगे 4 और 7 का. डिनोमिनेटर्स का LCM लेंगे which is 4 and 7. दोनों की मल्टीपल्स आप देखो कौन सा मल्टीपल कॉमन है 4 की टेबल में और 7 की टेबल में, which is 28. कौन सा मल्टीपल कॉमन है? विच इज 28. नाउ यू हैव टू ब्रिंग द 28 इन द डिनोमिनेटर. आपको डिनोमिनेटर में 28 चाहिए. 7/4 में भी और 22/7 में भी. सो हमें 4 में 28 कैसे आएगा? जब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. वैन वी मल्टीप्लाई 4 विद द 7 वी गॉट द डिनोमिनेटर 28. सो 7/4 इज इक्वल टू, उस 7 को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 विद द न्यूमरेटर एंड विद द डिनोमिनेटर एज वेल. 7 multiplied by 7/4 multiplied by 7 is equals to 49/28. एंड अगेन 22/7. अब 7 हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 28. तो 7 को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि 28 आ जाए? 7 मल्टीप्लाई बाय 4. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 विद द न्यूमरेटर एज वेल. 22 मल्टीप्लाई बाय 4/7 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गॉट द रिजल्टेंट 88/28. नाउ वी हैव टू लाइक फ्रैक्शंस. व्हाई लाइक फ्रैक्शंस? बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम. 49/28 and 88/28. नाउ अगेन सिमिलरली कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, सिमिलर हम इसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 3 1/7 माइनस 1 3/4. हमने इसको चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में. क्या आया ये? 88/28 माइनस 49/28. लाइक फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर्स कॉमन है, आप सिंगल टाइम लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर. सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर. 88 माइनस 49 वी गॉट 39/28. 39/28 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. देन वी डिवाइड. वी हैव टू डिवाइड 39 विद द 28. 28 1s are 28. When we subtract 28 from 39 we got 11. So how could we write? How could you convert mixed fraction, improper fraction into mixed fraction? By dividing the fraction. So we write it as 1 11/28 as a 1 is a whole number and 11/28 as a proper fraction. So this is the subtraction of like fraction, subtraction of unlike fraction and subtraction of mixed fractions.